عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں شعبہ اردو کی جانب سے بی ایس سی BCom SL اردو کی تمام طلباء و طالبات کا چوتھے سیمسٹر میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے سیمسٹر میں ہم نے کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن لیکچرز یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے تھے اور آپ تمام لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا تھا۔ ابھی اس سیمسٹر میں بھی مرکزی حکومت، ریاستی حکومت، پھر ہماری پیرنٹ یونیورسٹی، ان سبھی کے ہدایت کے مطابق ہمیں پھر سے ہمارے چوتھے سیمسٹر کا جو نصاب ہے آن لائن ہی تکمیل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کالج کے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹل چینل یوٹیوب چینل شروع کیا گیا ہے، جس سے آپ کے جو مضامین ہیں مضامین کے حساب سے آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے شعبہ اردو کا بھی ایک چینل ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے یا آپ کو یہ ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگ یوٹیوب چینل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بار بار ان لیکچرز کو سنیں، بار بار سنتے وقت آپ رننگ نوٹس اس کے نکالیں تاکہ آپ کو آگے مطالعہ کرنے میں، پڑھائی کرنے میں آسانی ہو۔ سرپرست یونیورسٹی نے اور ہمارے بورڈ آف اسٹڈیز اردو اس کے دونوں نے مل کر جو چوتھے سیمسٹر کے لیے نصاب بنوایا ہے، جس کا عنوان ہے اردو نثر اور قواعد۔ اس نصاب کا ہم سب سے پہلے مطالعہ کریں گے آج کے لیکچر میں، انٹروڈکشن ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد پھر ہم جو کام کریں گے آج کے لیکچر میں صرف اس کا تعارف دیکھیں گے سلیبس کا، اور اس کے بعد اگلے لیکچر سے ہم اس کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اردو نثر اور قواعد پیپر نمبر 4 SL کے لیے ہے، BA BSc BCom۔ تو پہلا جو حصہ رکھا ہوا ہے وہ ہے افسانہ۔ اس میں 3 افسانے شامل کیے گئے ہیں۔ ایک منشی پریم چند کا عیدگاہ، دوسرا سعادت حسن منٹو کا نیا قانون، اور تیسرا ہے جیلانی بانو کا موم کی مریم۔ ان 3 افسانوں میں ہم کو ایک کہانی بتائی گئی ہے، عیدگاہ ہے، نیا قانون ہے، موم کی مریم ہے۔ اس کے افسانہ نگار مختلف ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو حصہ افسانے پر مبنی ہے اس کے بارے میں مختصر یہ دیکھیں گے کہ سرسری طور پر افسانے کی تعریف کیا ہے، اس کی مختصر سی حیت دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پہلے افسانے کی طرف آ جائیں گے، جس میں منشی پریم چند کا عیدگاہ افسانہ ہے، منشی پریم چند کا تعارف، اور اس کے بعد پھر عیدگاہ افسانے کا مطالعہ، اور آخر میں اس کا ہم تجزیہ کریں گے، یعنی کہ اس میں کون سی خوبیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، یا منشی پریم چند کی جو افسانہ نگاری ہے اس پر ہم اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سعادت حسن منٹو کا جو نیا قانون افسانہ ہے اس پر بھی ان کا تعارف دیکھیں گے، افسانے کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر تجزیہ کیا جائے گا۔ جیلانی بانو، انہوں نے جو موم کی مریم افسانہ لکھا ہے اس کے بارے میں بھی اسی ڈھنگ سے ان کو تعارف
अफसाना और फिर उसके बाद तज्जिया। अब देखिए नस्र की जो मुख्तलिफ असनाफ़ हैं उसको इस निसाब में शामिल किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि दूसरा जो हिस्सा है वो है इंशाई कलम में। तो निसाब में 3 इंशाइए शामिल किए गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत इंशाइए हैं, जिसमें सबसे पहला है मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग का मुर्दा बदस्त ज़िंदा। दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी का है चारपाई। तीसरा यूसुफ नाज़िम का आईने का। इन तीनों का हम मुताला करेंगे तफसीली तौर पे। सबसे पहले तो इंशाई के बारे में देखेंगे, इंशाई किसे कहते हैं, उसकी हैयत क्या है। उसके बाद फिर ये जो 3 इंशाई निसाब में शामिल किए गए हैं उन तीनों का हम मुताला करेंगे। निसाब का तीसरा हिस्सा खाकी पर मबनी है। उर्दू नस्र की जो सिंफ खाका है उस पर हमको रोशनी डालनी है। सबसे पहले खाके की तारीफ़ देखेंगे, उसकी हैयत देखेंगे, और उसके बाद फिर निसाब में शामिल जो खाके हैं, जिसमें मौलवी अब्दुल हक का पहला खाका है, मोहसिनुल मुल्क, फिर मुज्तबा हुसैन का सो है वो भी आदमी, और वहाब अंदलीब का धान पान शायर राही कुरैशी। ये 3 जो खाके हैं, इन तीनों खाकों का हम तफसीली मुताला करें। अब खाके को जैसा कि हम एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो उससे हमको अंदाज़ा लगेगा कि मोहसिन मुल्क का खाका में मोहसिन मुल्क कैसे थे। फिर मुज्तबा हुसैन ने सो है वो भी जो आदमी लिखा है उसका मुताला करेंगे। फिर धान पान शायर राही कुरैशी। इस तरह के तमाम खाके का मुताला करने से हमको उसकी खूबियाँ और खामियाँ नज़र आएंगी, उनका हम जायज़ा ले सकेंगे। फिर चौथा जो हिस्सा है वो है मकतूब का। मकतूब यानी कि ख़त लिखना। तो मकतूब निगारी जिसे कहेंगे, ख़त लिखने का जो फ़न है उसे मकतूब निगारी कहेंगे। तब हम जो उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि उर्दू अदब में ख़ुतूत की जो रिवायत है बहुत पुरानी रही है, और ख़ुतूत को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती थी। और इस मकतूब निगारी में 2 बहुत माहिर शख्सियात, या फिर 2 ऐसी शख्सियात जो मकतूब निगारी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उर्दू अदब में, उनमें से सबसे पहली है मिर्ज़ा गालिब। तो उनके 2 ख़त यहाँ पे शामिल किए गए हैं निसाब में। एक ख़त है मिर्ज़ा हरगोपाल तख्ता के नाम उन्होंने जो लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने, वो ख़त शामिल किया गया है। दूसरा है अलाउद्दीन अहमद ख़ान के नाम। तो मिर्ज़ा गालिब के 2 ख़त हैं जो उन्होंने हरगोपाल तख्ता के नाम जो लिखा हुआ है, और अलाउद्दीन अहमद के नाम दूसरा। उसके बाद दूसरी जो शख्सियत है मकतूब निगारी में, जिनकी ख़ुतूत निगारी को मकतूब निगारी को शामिल किया गया, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब चूँकि हम उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि मौलाना अबुल कलाम, जिन्हें नस्र में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, तो उनका जो ख़त लिखने का अंदाज़ था या वो उनकी जो ज़ुबान थी, उनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं, उस पर हम तफसीली रोशनी डालेंगे। तो एक मकतूब है जो उन्होंने 3 अगस्त 1942 को लिखा है, उसका मुताला करेंगे। दूसरा मकतूब है 11 अप्रैल 1943। तो ये मकतूब निगारी में हम 4 ख़ुतूत का मुताला करना है, 2 मिर्ज़ा गालिब के और 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। अब निसाब का आखिरी जो हिस्सा है वो है क़वाइद पर मबनी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्फ़ की तारीफ़ क्या है और उसकी क़िस्में। हर्फ़ की तारीफ़ और उसकी क़िस्में, फ़ेल की तारीफ़ और उसकी क़िस्में, मुहावरे और ज़र्ब मिसाल, साबिक़े और लाहिक़े। ये 4 क़वाइद की चीज़ों पर मबनी निसाब तैयार किया गया है। तो इस तरह से निसाब को 5 हिस्सों में जो मुनक़सिम किया गया है, ये 5 हिस्सों का हमको इस चौथे सेमेस्टर में मुताला करना है। और ये मुताले करने के बाद फिर हम देखते हैं कि 40 मार्क के लिए ये निसाब तैयार किया गया है,
और फिर 35 मार्क जो हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए रखे गए हैं। जिसमें 2 क्लास टेस्ट रहेंगे 10-10 मार्क के लिए और एक असाइनमेंट रहेगा 15 मार्क के लिए। इस तरह से 35 मार्क कंटिन्यूअस असेसमेंट और 40 मार्क थ्योरी पेपर, यानी कि 75 कुल 75 नंबरात का ये पर्चा रहेगा। उसका जो पर्चे का नमूना है या मार्किंग किस तरह से रहेगी, 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मुख्तसर नोट लिखना है, 3 दिए जाएंगे, 3 में से 2 करना है, 10 मार्क के लिए करना है। उसके बाद 4 क्वेश्चन हैं 10-10 मार्क के लिए, मुफस्सिल जवाब देने हैं, जिसमें हर सवाल में एक या रहेगा, यानी कि 2 सवालात रहेंगे, कोई एक करना है 2 में से। ये 4 सवालात हैं, 4 दूनी 8 और हर सवाल के लिए 10 नंबर मख्तस किए गए। तो इस तरह से ये पैटर्न बताया गया है। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ इसमें तब्दील की हुई है, कंटिन्यूअस असेसमेंट 25 मार्क के लिए रखा गया है और थ्योरी पेपर 50 मार्क के लिए रखा गया है। तो थोड़ा सा आप दुरुस्त कर लीजिए, थ्योरी पेपर जो रहेगा 50 मार्क के लिए रहेगा और 25 मार्क के लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट रहेगा। तो इस तरह से नंबरात उसके दिए हुए हैं। और पहला सवाल जो है मुख्तसर नोट का, वो ज़रूरी और लाजमी सवाल है। उसके बाद बकिया जो 4 सवाल आते हैं उसमें या ऑप्शन के साथ रहेगा, जिसको हम कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये रहा निसाब और इस तरह से रहा उसका नंबरात के साथ पेपर का नमूना। अब अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सिलेबस की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमको देखना है या निसाब का पहला हिस्सा जो है वो है अफसाना। तो अफसाने की तारीफ देखेंगे और उसके बाद उसकी थोड़ी सी हैयत देखकर हम पहला जो अफसाना है निसाब में शामिल मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह, उसकी तरफ शुक्रिया।